where do you find yourself when you close your eyes? I find myself somewhere on the hills, walking on the trails in the woods. And how about we get that greenery in our houses? So it's been almost 2 years that I went out in the woods. Couldn't go because of the COVID and all the situations surrounding us. I could not go anywhere out. But yes, the best idea could be to get the greenery indoors. So why only get greenery in the houses? Even the office spaces are very, very important, wherein a person who works spends the whole day in the office. तो अगर वहीं पर greenery हो जाए तो कितना अच्छा रहे. So today I am here in one of the offices, और ये जो ऑफिस है ये जिनका है, he is a CA himself, और यहाँ पर जो सारा का सारा काम होता है वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड होता है. So there are a lot of discussions that go on, there are a lot of books everywhere and a lot of thinking that goes on. So keeping all those things in mind, I am going to put different plans over here, the statement plants, and I am also going to take care कि मैं इस जगह को overdo ना करूँ plants से, because definitely plants अच्छे लगते हैं, but ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने इतने ज़्यादा plants यहाँ पर भर दिए हैं that it is creating kind of a hindrance when we work. So let me take you to the place कि यहाँ क्या है, कितना बड़ा area है and how does it look. So this is a corner office and it has two sides are glass walls. So glass walls के साथ में एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि when we are in Rajasthan and temperatures over here soar up to 45-50 degrees in the month of May, June. So in summers we really need to take care of the fact कि अगर हमने दीवार के पास में या ग्लास वॉल के पास में अगर हमने कोई भी प्लांट रखा तो उसकी जो लीव्स होंगी वो जल जाएंगी. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हर प्लांट हम इंडोर रख नहीं सकते. सो वी रियली नीड टू सी कि ऑफिस के अंदर अगर हम लोग कोई प्लांट्स रख रहे हैं दे हैव टू बी वेरी वेरी लो मेंटेनेंस, उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना पड़े, बहुत ज़्यादा कभी उसकी पत्तियाँ खराब ना हो जाए. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. प्लस अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट वाज दैट आई डिडंट वांट टू ओवरडू द प्लेस बिकॉज ऑब्वियसली इट्स एन ऑफिस. वी डोंट वांट टू मेक अ जंगल आउट ऑफ द ऑफिस. So office बहुत decent लगना चाहिए. Let's see what I tried doing it. In one of our earlier videos we have seen कि landing point क्या होता है. So as soon as somebody gets into a place, एक घर के अंदर आप घुसे, एक रूम के अंदर आप घुसे, सबसे पहले आपकी निगाह जहाँ पड़ती है that is called as a landing point. So in this office I felt that this corner is little vacant. यहाँ कुछ भी नहीं रखा है and plus this is kind of a landing point when we enter the office. Another thing, the person who wanted to design, I will take his name, Himanshu ji. He wanted me to do something on this table. So this table he wanted me to put some artifact, some statement piece over here. So this is the one area that I'm going to cover. As earlier I told you, I would also be doing something on this corner. Another place that he wanted me to put some plants were on the boss's table. So this is the other area where he wanted me to do something, put in some greenery. तो मुझे जो इनिशियली लगा था वो लगा था कि प्रॉबेबली मैं नीचे कुछ यहाँ पर लो हाइट के पॉट्स दे दूंगी, मतलब नीचे पॉट्स रखेंगे और ऊंचे वाले पॉट्स ले लेंगे, प्लांट्स ले लेंगे. सो दैट्स गोना ऐड ऑन सम ग्रीनरी टू इट. बट देन ऑन सेकंड थॉट्स मुझे लगा कि अगर कांच के पास में मैं बहुत ज़्यादा प्लांट्स रख दूंगी और मई जून में इनफैक्ट अगर एक संडे की भी छुट्टी आ गई तो वो प्लांट्स जो होंगे वो झुलस जाएंगे. सो मैंने उस आइडिया को डिस्कार्ड कर दिया. रादर आई एम थिंकिंग अबाउट प्लेसिंग सम प्लांट्स ओवर हियर which are not going to be very tall, थोड़े से average height वाले जो plants हैं I'm gonna put over here. So I'm Dr. Aditi R. Khandelwal and welcome to my channel Flora Frenzy, and let's not waste any time and let's get to designing this office. So let's get started. और सबसे पहले मैं यहाँ थोड़ी सी जगह खाली कर देती हूँ. So this is the first piece that I am going to add to this office. This plant is a Sansevieria plant. Sansevieras जो होते हैं they are air purifiers, so they give a lot of oxygen in the area. Plus this is not a very जो plant का कलर है, जो pot का कलर है
दिस इज़ नॉट स्ट्राइकिंग वाइट, इट इज़ मिक्सिंग विद द होल प्लेस। जो बुद्धा का स्टैचू हमने रखा है दैट इज़ ऑल्सो द वन हु इज़ स्टडिंग, कीपिंग इन माइंड कि यहाँ पर CA, CS लॉ और इन सब चीज़ तरीके के काम होते हैं, वेर इन अ लॉट ऑफ थिंकिंग इज रिक्वायर्ड, अ लॉट ऑफ स्टडीज, डिस्कशंस, वो सारी चीज़ें होती हैं। सो हेंस द बुद्धा हु इज स्टडिंग। सो दिस इज द सेंटर पीस, दिस इज द स्टेटमेंट पीस, नथिंग एल्स वुड बी हियर। पूरी टेबल खाली रहेगी। द गॉड इज हियर, भगवान यहाँ पर हैं, तो हम उन्हें भी यहाँ से मूव नहीं करना चाहते थे। सो दिस इज गिविंग अ प्लेस फॉर द गॉड, प्लस द स्टेटमेंट पीस हैज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड द होल लुक ऑफ द प्लेस। प्लस जो कलर हमने कोऑर्डिनेशन किया है वो इसके साथ में जा रहा है, इट इज़ नॉट पॉपिंग आउट लाइक अ रेड कलर, एंड प्लस इट इज़ नॉट दैट डल एज वेल कि ये पूरा का पूरा unnoticed चला जाए। So this is the first statement piece that I've put over here. Let's move on to the next one. So as we discussed earlier that this is the landing place. जब भी कोई भी जना ऑफिस में अंदर घुसेगा तो सबसे पहले उसे ये एरिया दिखेगा, तो ये इतना खाली ना दिखे इसके लिए वी आर गोइंग टू डिज़ाइन पुट अरेंजमेंट ओवर हियर। तो 3 पॉट, 2 पॉट और एक स्टैचू यहाँ पर मैं रखने वाली हूँ, एंड आई एम गोइंग टू प्ले विद द हाइट ओवर हियर। सो टू एड द हाइट आई एम यूजिंग सर्टन स्टैंड्स। तो एक स्टैंड, एक तरीके के स्टैंड्स तो मैंने यूज़ करें जो कि मेटल के हैं, दीज आर रॉट आयरन स्टैंड्स एंड दीज आर वेरी वेरी इजीली अवेलेबल, नॉट वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। प्लस क्योंकि केवल ऐसे ही अगर रख देते तो अच्छा नहीं लगता, इस वजह से आई गॉट लकी एंड आई फाउंड दीज कोस्टर्स जो कि काफ़ी इस पूरे एरिया का जो ऑफिस का माइका है उससे मिलता जुलता सा मुझे काफ़ी मिल गया। सो दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू पुट, एंड द थर्ड स्टैंड दैट आई एम गोइंग टू यूज इज, बिकॉज एक स्टैचू यूज़ करने वाली हूँ मैं, तो दिस इज़ द अदर स्टैंड दैट आई एम गोना यूज। दिस इज़ वेरी हैवी एंड वेरी स्टेबल, तो काफ़ी वेट वाली जो पॉट्स होते हैं उनका वेट भी ये सहन कर लेता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड मैं यहाँ पर प्लेस करती हूँ इसे। So to give you a brief about the plants, we have used China doll plants. These look just like artificial plants, जिनका luster है जो इसकी leaves पे वो एकदम artificial plant के जैसा है, तो बहुत ही ज़्यादा तो कोई टच करेगा तभी उसे पता पड़ेगा these are originals। तो काफ़ी सुंदर हैं ये, बहुत इंडोर हैं। इंडोर का मतलब यही है कि they can survive indoors for a longer period of time. So वैसे इंडोर की बात करते हैं तो जीजी प्लांट एक ऐसा होता है जो कि बहुत सबसे ज़्यादा इंडोर वही चलता है सबसे ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड के लिए। बट देन अगेन आई हैड टू गिव सम न्यू प्लांट्स जो कि हर जगह अवेलेबल ना हो। सो दिस इज़ द चाइना डॉल प्लांट, एंड इफ़ यू सी द स्टैचू ऑफ बुद्धा एज वेल, सो बुद्धा का जो स्टैचू है वो बड़े अलग कलर का है। सो इस कलर से क्या थोड़ा सा एक डिफरेंस भी आ गया, कुछ नई चीज़ आ गई। गोल्ड यूज़ करते या ब्लैक यूज़ करते उस तरीके का बड़ा कॉमन हो गया है। सो दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बुद्धा। सो नाउ फॉर दिस प्लेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं नीचे प्लांट्स नहीं रख सकती थी, कांच के पास में है, फिर उसके बाद में ब्लाइंड आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा अगर गर्मी के मार्च के महीने में अगर मैं यहाँ पर प्लांट्स रख देती तो वो मई जून में डेफिनेटली द चांसेस वर कि वो मर जाते। इस वजह से आई एम नॉट पुटिंग एनीथिंग डाउन, रादर आई एम गोइंग टू फिल दिस प्लेस विद माई पॉट्स। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉट, एंड ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं है ये, हाइट इनकी कम ही है। सो आई एम गोइंग टू पुट वन ऑफ दिस ओवर हियर एंड वन goes near this. So these are almost the देसी वाला एग्लोनेमास, और एग्लोनेमा अगेन अंदर काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं, इस वजह से आई एम यूजिंग दिस। प्लस 2 पॉट लगाने का यही रीज़न है कि काफ़ी भरा भरा लग रहा है, ऑलमोस्ट पूरा जो बैकग्राउंड है वो प्लांट से ऐसा भर गया है, ग्रीनरी हो गई है। सो दीज अगर मैं कलरफुल वाले या कुछ ज़्यादा वेरीगेटेड वैरायटी उसमें लेती तो उनकी सस्टेनेंस थोड़ी प्रॉब्लमैटिक होती है। दैट इज़ वाई वी आर गोइंग विद aglonemas but not the colorful aglonemas. So these are aglonemas in ceramic pots again. So this is the last place जहाँ मुझे लगा कि I should put another pot over here. So again the choice of plant and the choice of planter is a little different. So सबसे पहले क्योंकि ये वुडन टेबल है, so I don't want कि ये ख़राब हो जाए, प्लस अगर प्लास्टिक के हम लोग इस नीचे ट्रेज लगाते थे तो वो इतने अच्छे और फिनिश नहीं लगते। So I'm using again कोस्टा, वुडन कोस्टा, वो मैंने सेंटर में रख दिया। And then I'm going to put a pot over here which is again a ceramic pot,
आई एम प्रीटी श्योर आप सब लोग ने सेंसवेरियाज बहुत देखे होंगे, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्नेक प्लांट, और स्नेक प्लांट अगेन एक एयर प्यूरीफायर होता है. सो ये लाने का रीज़न ये था कि थोड़ा सा कलर पॉपअप भी हो गया इसके अंदर, बट इन अ वेरी सटल मैनर. द प्लांट का जो पॉट का कलर है दैट इज़ ऑल्सो डार्क ग्रीन, अ लिटिल ऑफ लाइट ग्रीन शेड, तो बहुत ज़्यादा पॉप आउट नहीं कर रहा है, वेरी सटल बट इज़ गोइंग विद द होल डेकोर ओवर हियर. और जो प्लांट है सेंसवेरिया, जिसको हम स्नेक प्लांट भी बोलते हैं, दिस इज़ नॉट द रेगुलर स्नेक प्लांट विच इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, दिस इज़ कर्ली सेंसवेरिया. सो यस, आई थिंक आज आई जस्ट लव्ड डेकोरेटिंग द प्लेस, और अलग अलग तरीके के वैरायटी के हमने प्लांट्स लगाए. कलर हमने सटल रखे. we didn't go with the metal planters or the white planters because बहुत ज़्यादा हो चुका है वो already office spaces के अंदर. So these are not overburdening the the places with the plants, but yes, I am happy with the kind of work that I've done. And now let's meet the person, the owner of this place, the person who called me to design, to add greenery to the place. So let's meet Mr. Himanshu. So let's welcome हिमांशु जी, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी ऑफिस स्पेस को डिज़ाइन करने का. आइए हिमांशु जी. हाय, थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. अब आप बताइए आपको कैसा लग रहा है. My pleasure. So I'm in my room. Yes. On the first day. I think I should have called you on the first day. Oh my God. So see, जो मैं आपको थोड़ा सा बता भी देती हूँ. So as soon as आप अंदर घुसे होंगे तो आपको वो दिखी होगी. So that is called as the landing place. तो जहाँ पर हम घुसते ही जो हमें सबसे पहले दिखता है, तो वो हमें थोड़ा सा खाली लगा था. मेरा आइडिया था पहले या तो यहाँ पर रखें या उस कॉर्नर में रखें, बट बाद में मुझे लगा कि दिस इज लैंडिंग एरिया, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए. यहाँ पर भी हमने क्योंकि 2 अपने सोफा रखे थे, तो यहाँ पर एक छोटा सा सेंटर पीस हो गया. Which plant is this? दिस इज कर्ली सेंसेवेरिया. तो सेंसेवेरिया की बहुत सारी वैरायटीज आती हैं. दिस इज अ न्यू वन, दिस इज नॉट दैट इजीली अवेलेबल. दिस इज कर्ली सेंसेवेरिया. दिस इज एन ऑक्सीजन गिविंग प्लांट. सो मूविंग टू दिस साइड, जो आपने मुझे बताया था कि भगवान जी यहीं रहें तो बेटर रहेगा, तो हमने भगवान जी की स्पेस को बिल्कुल टच नहीं करा है, बट वी हैव पुट अ स्टेटमेंट पीस ओवर देयर. दैट इज अगेन अनदर वैरायटी ऑफ सेंसेवेरिया, क्योंकि सेंसेवेरिया इंडोर ज़्यादा चल पाते हैं, बट दिस इज अनदर वैरायटी. प्लस हमने बुद्धा का रीडिंग स्टडिंग वाला इसलिए दिया है क्योंकि आपका सारा काम ऐसा वाला है, सो दैट गोज विद द होल वर्क दैट यू डू. प्लस जो आपने मुझे वो वाला एरिया दिखाया था, तो यहाँ पर हमने अनदर सेट ऑफ प्लांट्स चूज़ करा है, एग्लोनेमास, और इनको भी बहुत ज़्यादा सन की भी ज़रूरत नहीं है, इंडोर्स चलते हैं. तो दिस इज़ व्हाट वी हैव पुट ओवर हियर. नीचे रखना काइंड ऑफ बड़ा पुराना हो गया, इस वजह से वी हैव ट्राइड समथिंग न्यू. So these are oxygen generating plants? These are not, those ones are. These ones. हाँ, वैसे तो सारे ही प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, बट those particularly are, they emit more of oxygen. This is China doll plant. दिस इज अगेन अ न्यू वैरायटी जो जनरली आपको कहीं इतनी ज़्यादा रखी हुई नहीं दिखेगी. दिस लुक्स लाइक एब्सोल्यूट आर्टिफिशियल, बट ये आर्टिफिशियल नहीं है. दिस इज़ अ नेचुरल प्लांट, और इनकी जो लीव्स में लस्टर है वो काफ़ी अच्छा है. सो कभी कभी अगर आप किसी ऑफिस बॉय को थोड़ा सा इस पे ना पानी का छींटे या स्प्रे देने के लिए कह दें और थोड़ा सा कपड़े से वाइप कर दें, सो दिस इज गोना लुक एज इट इज़. प्लस बुद्धा जो हमने दिए हैं अगेन फॉर द कामनेस विद द टेंशन, तो ये काम पीस देंगे आपको थोड़ा. प्लस हमने जो इनका टेक्सचर सारा का सारा यूज़ करा है, दिस इज़ अनयूजुअल, तो बिल्कुल गोल्ड या ब्लैक रखते हैं तो दैट लुक्स वेरी मोनोटोनस, सो वी हैव गिवन अ न्यू कलर. Very nice. So what's the life of these plants? लाइफ तो आराम से है, क्योंकि ये काफ़ी पुराने पॉटेड प्लांट्स हैं, इस वजह से इनका ये नहीं है कि ये मर जाएंगे. अगर हम बिल्कुल अभी पॉट करके लाती, मैं कम से कम 4-4, 5-5 महीने पुराने हैं जो इनमें लगे हुए हैं ये. सो ये काफ़ी स्टर्डी हैं. जो यहाँ पर जारे में प्लांट्स लेकर के आई हूँ, पुराने वाले ही लेके आई हूँ, तो ये मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं मरने चाहिए. ओवर वाटरिंग से प्लांट मरते हैं, तो हम ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे. दिस नीड्स वाटर ट्वाइस अ वीक, अदर प्लांट्स नीड जस्ट वंस अ वीक. तो वाटर ढंग से हुआ तो दे वुड बी ऑल फाइन. So I have 6 new friends. Yes. 2, 3, 4, 5, 6 in my room, and I'll have to take care of them. I hope you like it. No, very nice, really very nice. Altogether a different experience. See, because we've had rooftop gardens and everything. जी. My idea was to have something in the room where I sit approximately more than 12 hours. Make it a day. more lively, yes. So it has to be more lively, attractive, as well as some part of oxygen also coming here. Exactly. Beautifully done. Really appreciate. Very nicely done. Less and beautiful. Thank you. Thanks a lot. You know what I thought you would be keeping 7-8 plants there. 8. So I thought, Tanis, what will come? Very nice.
बट यस दैट्स द होल आइडिया कि ओवरबर्डन ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली वी कम हियर फॉर वर्क, तो वर्क में कहीं भी हिंड्रेंस नहीं आनी चाहिए। एक बार मेरे साथ में एक्चुअली ऐसा हुआ था, मैंने अपने घर में मुझे प्लांट्स का ओवरबर्डन कर दिया। माय हस्बैंड वाज सिटिंग और उनके पीछे प्लांट्स रखे, कह रहे ये पत्ते कहाँ से आ गए, ये क्या हो गया। तो दैट गेव मी लर्निंग दैट ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए। Very nice. So nice of you. So and really very nicely placed. thank you. Even the choice of plants. Believe me, I have not seen any one of them. Okay, so thank you, Himanshu ji. This is my first office that I've done. So this is going to be very close to my heart.